Hello. Okay. A very good evening to all. Before we start the session, there is one instruction. If you have any doubt, you can always put the message in chat box. A very important concept of organic chemistry. आज हम देखने वाले हैं. It's all about very difficult topic. I can say how to assign RNS configuration. But after today's session, you will be masters whenever any structure is there in front of you. आपके सामने कोई भी स्ट्रक्चर आए, आप बेफिक्र वो रूल्स अप्लाई करेंगे तो 100% वो राइट कॉन्फ़िगरेशंस असाइन करेंगे. इट इज अ मोस्ट डिफिकल्ट, बट आई कैन से इट इज most easy as far as the concept is there. Okay, let me share the screen. And before we start the session, uh, जितने भी डाउट्स हो डेफिनेटली आप चैट बॉक्स में रख सकते हैं. ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन. जस्ट अ सेकेंड. Just a second, I am sharing the screen. Okay, is the screen is visible? Is the screen is visible? Okay, fine. Thank you. A very interesting topic. Let we start स्टीरियोकेमिस्ट्री. आगे स्टीरियोकेमिस्ट्री के 2 सेशंस हुए हैं जो एपोमाइंड ऑनलाइन लाइव एप्लीकेशन में आप देख सकते हो. इट्स ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री. व्हेन वी टॉक अबाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री, ऑलवेज एक चीज दिमाग में आती है कि व्हाट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म. Before we start stereoisomerism, it is essential to see what is isomerism. So isomerism, it means compounds having same molecular formula but different molecular structure. Molecular formula same है, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे एटम्स सेम है, बट molecular structure is different. Isomerism is of two types. One is constitutional isomerism, that is called as a structural isomerism, in which two isomers can be differentiated by only without any reference to space. It means no any three dimensionality is involved. It can be classified into 5 different ways: chain isomers, positional, functional, metamerism, and tautomerism. नाउ ये सारी चीजें जो बेसिक्स है वो स्टीरियोकेमिस्ट्री सेशन 1 ऑनलाइन एंड सेशन 2 ऑनलाइन में already it is available in application. So I am quickly revising this concept. Okay, when we talk about stereoisomerism, it is classified into mainly 3 different ways. One is configurational isomers, another is conformational isomerism, and if you see any book, stereoisomerism are basically of two types. One is configurational isomers, another is conformational isomers. But as far as my own classification is concerned, it is of 3 different types.
one is optical isomerism, another is geometrical isomerism, and the third one is conformational isomerism. ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो है वो दोनों आइसोमरिज्म को हम बोल सकते हैं कन्फिगुरेशनल आइसोमर्स, यानी कि एक स्टीरियो आइसोमर को अगर दूसरे स्टीरियो आइसोमर में कन्वर्ट करना है तो यू मस्ट हैव टू ब्रेक द बॉन्ड. विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस इट वॉन्ट बी पॉसिबल, बट अगर मैं बोलूं कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म, इट इज पॉसिबल. ओके, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के 5 डिफरेंट टाइप्स थे. चेन आइसोमरिज्म इन विच चेन ऑफ कार्बन एटम इज डिफरेंट. You can say functional isomers where molecular formula is same but different functional groups are involved: aldehyde, ketone, alcohol, ether, carboxylic acids, and ester. Okay, then positional isomerism, it means functional group is same but position of functional group is definitely different. ये सारी चीजें ऑलरेडी हम लर्न कर चुके हैं, so I'm just quickly revising. Then the fourth one is metamerism, and last one is all about different types of tautomerism. A shifting of atom, usually hydrogen, from one position to the another position within structure. जनरली हम कीटोइनोल टॉटोमरिज्म्स के बारे में अक्सर सुनते हैं. तो it's not like that only ketoenol tautomerism is there, but there are other types of tautomerism where you can always focus. Okay, enamine tautomerism, amidol tautomerism. One of the most popular tautomerism, it's all about nitroso-oxime tautomerism. Again, fundamental concept is same: shifting of atom, usually hydrogen, from one position to the another positions within structure. हाइड्रोजन की पोजीशन एक स्ट्रक्चर में से अगर आप कंपेयर करो दूसरे स्ट्रक्चर में तो उनकी पोजीशन चेंज रहेगी. फाइन. देन इट्स ऑल अबाउट एक्चुअल टॉटो आइसोमेरिज्म्स, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया. देयर आर 3 डिफरेंट parts. One is optical isomers, another is geometrical isomer, and the third one is conformational isomerism. Okay, optical isomerisms, one of the most popular concept of optical activity that we have seen. Usually optical activity is only one phenomena in stereochemistry which is a practical, unless and until you perform the practical in polarimeter you can come to know about its optical rotation. Compounds having chiral center, they have ability to rotate the plane polarized light either clockwise or anti-clockwise. अगर clockwise है तो उसको हम usually बोलते हैं dextrorotatory. अगर anti-clockwise है तो यूजुअली हम बोलते हैं लीवोरोटेटरी. स्मॉल डी एंड स्मॉल एल इज द वे टू रिप्रेजेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी. उसका एक दूसरा कंसेप्ट हम लोगों ने लर्न किया था, इट्स ऑल अबाउट एंगल ऑफ रोटेशन. ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन को यूजुअली बोलते हैं अल्फा, which depends on 4 different factor: temperature of experiment, wavelength of light, length of polarimeter tube, and of course what you can say concentration of the solution. Okay, so if you want to make it constant you need to use this formula, that is a specific angle of rotation जो हम अल्फा को ब्रैकेट में लिखते हैं. it's nothing but observed angle of rotation, but when length of tube is 1 decimeter and concentration of solution is 1 gram per ml, at that time whichever the angle of rotation is there it is called as a specific angle of rotation. बहुत ही यूजफुल कंसेप्ट. ओके, स्टीरियोकेमिस्ट्री की मैं जब भी बात करता हूं तो ये 2 कमेंट्स बहुत ही जरूरी है. इट इज सो मच यूजफुल कमेंट और बहुत सारे कंसेप्ट ये कमेंट पे डिपेंडेंट है. वन ऑफ द पॉपुलर कमेंट इज कायरलिटी इज नाइदर नेसेसरी नॉर सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी. यानी कि हम अक्सर बोलते हैं कि कंपाउंड्स के पास किरल सेंटर हो तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, बट ये कमेंट बहुत कुछ कह रही है. कायरलिटी इज नाइदर नेसेसरी नॉर सफिशिएंट कंडीशन, यानी कि हम ऐसे कंपाउंड्स हमारे पास है जिसमें किरल सेंटर नहीं है,
फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव है. देयर आर ऑल्सो द कंपाउंड्स विच हैव किरल सेंटर स्टिल दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव. तो ये कमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इफ यू टॉक अबाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री. बट ये सारी चीजें जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि इट हैज ऑलरेडी बीन अपलोडेड इन दी on live applications of Appomind. So please go through this, and if you have any doubt, definitely you can always ask. Okay, a second most important comment is non superimposibility is essential condition of existence of enantiomer. Enantiomers के बारे में मैं बताऊं तो two stereoisomers which are mirror images of each other but they are not superimposable. आगे है कमेंट्स में, will revise. ओके, कई सारी बुक में ये कंसेप्ट अलग से दिए हैं. ऑप्टिकल एक्टिविटी तो सबको पता रहती है, लेकिन what we need to understand is which are the different reasons, which are the different compounds where compounds are optically inactive किराल सेंटर होने के बावजूद. तो वन इज सिमेट्री. There are different types of symmetry: plane of symmetry, center of symmetry, axis of symmetry. Okay, तो एक चीज मैं बता देता हूं, आई एम रिपीटिंग these things कि there are two important words. One is non superimposability, one is non superimposability, and another is what you can say symmetry. जहां सिमेट्री की बात आती है, whenever you talk about symmetry, it means चाहे वो कोई भी टाइप की सिमेट्री हो. We will see the examples. You can see here plane of symmetry. These are the examples of object where you can cut the half object is always, if you try to fold it, so definitely it will be superimposable on another half of the part. You just try to fold, अपनी पूरी बॉडी को ले लो. Okay, तो इसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री. देयर आर आल्सो सम एग्जांपल्स व्हिच आर गिवन इन द बुक. दैट इज, अगर इफ यू टॉक अबाउट 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन, तो ये ऐसे एग्जांपल्स है कि उसको इफ यू कट दिस प्लेन इनटू टू इक्वल हाफ, तो डेफिनेटली इफ यू ट्राई टू फोल्ड, दे आर ऑलवेज सुपर इम्पोजिबल ऑन ईच अदर. दे आर ऑलवेज सुपर इम्पोजिबल ऑन ईच अदर. इसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री. ओके, दिस इज अ सेंटर ऑफ सिमेट्री वेयर अ पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट साइक्लिक एलिफेटिक कंपाउंड में जहां से आपको दो डिफरेंट डायरेक्शन में सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स देखने को मिलेंगे. इफ यू टॉक अबाउट COOH ग्रुप, यहां से एग्जैक्टली ऑन अपोजिट साइड you will find equal distance and you will find a same substituent. तो उसमें किराल सेंटर हो उसके बावजूद भी कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव है. आई एम जस्ट रिवाइजिंग दिस बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बीन अपलोडेड. ओके, देयर इज वन मोर टाइप ऑफ सिमेट्री व्हिच इज कॉल्ड एज अ अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री. स्टीरियोकेमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी अगर कोई है तो इट्स ऑल अबाउट एनांशियोमर. टू स्टीरियोआइसोमर्स which are mirror images of each other, and if you try to put these stereoisomers on this, it will be definitely non superimposable. इसीलिए जो आगे मैंने दो कमेंट्स बताई थी, one of the comment is this: non superimposability is essential condition for existence of optical activity, essential of enantiomerism. जहां पे enantiomer की बात है तो वहां पे 101% नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी होगी ही होगी. आई रिपीट अगेन, two stereoisomers which are mirror images of each other but they are of course not superimposable on each other. enantiomers की physical properties same रहती है एक्सेप्ट ऑप्टिकल एक्टिविटी. केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम रहती है बट उनका जो बिहेवियर है टुवर्ड्स एनी ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट वो टोटली अलग रहता है. why I am forcing this terminology particularly because as a medicinal chemist और as a pharmacist, जितने भी ड्रग्स है, बहुत सारी ड्रग्स में किराल सेंटर्स है. आप जब सिंथेसाइज करते हो वो ड्रग्स, वो डेफिनेटली एनांशियोमर्स प्रोड्यूस करते हैं. एनांशियोमर्स को रिजॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. देयर आर सो मेनी मेथड्स बाय विच one can separate
one one can separate single enantiomer from the racemic mixture. क्योंकि क्योंकि दो enantiomer का मिक्सचर है 50-50%, तो इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल ऑफ कोर्स कि 50% enantiomer की कुछ अलग एक्टिविटी है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, और 50% के कुछ अलग एक्टिव बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, इसलिए उनको सेपरेट करना उतना ही जरूरी है. तो दीज आर जस्ट द methods by which we can differentiate. ओके, डायस्टीरियोआइसोमर्स ये दूसरी टर्मिनोलॉजी ऐसी है जहां पे टू स्टीरियोआइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, दो ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस ना हो. दे आर नॉट, ओनली वन वर्ड इज डिफरेंट. एनांशियोमर में मिरर इमेजेस आइसोमर, डायस्टीरियोमर्स में द आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेजेस. और स्पेशलिटी ये है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी डिफरेंट है, केमिकल प्रॉपर्टी भी उसकी डिफरेंट है, यानी कि उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, विस्कोसिटी, एवरीथिंग इज डिफरेंट. ओके, तो उसको सेपरेट करना बहुत ही इजी रहता है. देयर आर टू टेक्निक्स, वन इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अनदर इज फ्रैक्शनल crystallization. Okay, fine. Cis trans is again a classical example of geometrical isomers. Okay, erythrothrio is again a classical example of geometrical isomers. Okay, anomers, alpha anomer and beta anomers, biochemistry point of view, again I already have discussed this kind of examples. Okay, epimer, C2 epimer, C4 epimer, again they are called as a, what you can say, diastereoisomers of each other. ओके, नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स, अगर एक किराल सेंटर है तो डेफिनेटली 2:1 दो स्टीरियोआइसोमर्स उसके रहेंगे. इफ यू हैव अ टू स्टीरियो सेंटर्स तो नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स आर ऑफ कोर्स 2:2 यानी कि 4. अब व्हाई आई एम फोकसिंग दिस? बिकॉज those who have recently appeared for GPAT 2024, one question asked in the entrance examination of GPAT 2024, it is like this: how many optical isomers are possible for lactic acids? Here you can see lactic acids का structure नहीं दिया है, the structure has not been given. Okay, तो ये भी याद रखना जरूरी है. ऐसे 3-4 ऐसे स्ट्रक्चर से लैक्टिक एसिड्स का स्ट्रक्चर मैंने यहां पे रखा है, केवल एक स्टीरियो सेंटर है तो डेफिनेटली व्हाट यू कैन से उसके दो स्टीरियो आइसोमर्स रहेंगे एज पर फॉर्मूला 2:1 यानी कि 2. अब प्लस एंड माइनस ये तो हमको पता है कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये लीवो रोटेटरी है. Intentionally I have put this kind of structures because today's most important focus is this. RS हम असाइन करने वाले हैं, उसके पहले हम असाइन करने वाले हैं DNL, and that is why I have put these examples so that the concept will be clear. But ये examples GPAT 2024 में पूछा था, believe me. Now this is just a highlight of the structures where some of the compounds from biochemistry point of view, you can see malic acids, उसमें एक किराल सेंटर है, केवल एक किराल सेंटर. टार्टरिक एसिड्स यहाँ पे भी लिखा है L. ओके, लैक्टिक एसिड्स यहाँ पे भी लिखा है कैपिटल D. तो कैपिटल D, कैपिटल L वो रिलेटिव कन्फिगुरेशन है. विल कम टू दैट पॉइंट, यही आज हम करने वाले हैं. बट इंटेंशनली आई हैव पुट द एग्जांपल्स अलोंग विथ स्ट्रक्चर्स. द रीजन इज वेरी क्लियर कि एग्जाम्स में वो स्ट्रक्चर्स नहीं देंगे, केवल और केवल आपको स्ट्रक्चर याद करके जाना है ताकि आप एग्जाम्स में वो क्वेश्चंस अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सको एज फार एज स्टीरियोकेमिस्ट्री इज कंसर्न. ओके, नाउ let's start with our today's actual concept. We'll go slow by slow. Whenever ask any questions, please without any hesitations you can always put a message in the chat box. Okay, fine. Can we start the assignment of configuration part? Can we start? Please reply. Can we start? Okay, okay, fine. Thank you. Okay, बहुत ही important concept है. So whenever I ask some questions,
without any hesitations, do actively participate in the chat box. This is online session, so I want each and every students will participate in the interactions so that the session will be meaningful. Assignment of configurations, what is a meaning of this part? First of all, let me tell you, assignment, it means we are giving identity, we are giving identity to stereo molecules. स्टीरियो मोलिक्यूल्स यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो 3D स्पेस में है. ओके, थ्री डायमेंशनलिटी इज इन्वॉल्व एंड हेंस we need to use stereo bonds to draw the structures into the notebook, or what you can say, the blackboard. Fine. But when you talk about identification, यानी कि एक स्ट्रक्चर मैंने नोटबुक में ड्रॉ किया है with using stereo bonds, with using stereo bonds, will come to that point, stereo bonds. Okay, तो वो स्ट्रक्चर्स की खुद की कुछ आइडेंटिटी है कि वो स्ट्रक्चर्स अगर इस तरह से आपके बुक में दिया है या आपने नोटबुक में लिखा है तो उसको मैं क्या नाम दूं. और हर इंडिविजुअल आइडेंटिटी एक अलग स्टीरियो आइसोमर है. आर आइसोमर, एस आइसोमर, डी आइसोमर, एल आइसोमर. सो व्हाट इज दैट? as I said, importance in pharmacy is endless importance. क्योंकि जब मैंने अभी बताया आपको कि कंपाउंड्स यानी ड्रग्स बनाते हो तो उसमें स्टीरियो आइसोमर्स प्रोड्यूस होते हैं. ओके, अब आपको डिफाइन करना है कि आर कन्फिगुरेशंस वाला आइसोमर्स कैसा है, वो स्पेस में कैसा दिखेगा. तो देयर आर टू वेज फॉर दैट. अगर मुझे स्टीरियो बॉन्ड्स की आइडेंटिटी देनी है स्टीरियो मॉलिक्यूल्स की, तो मेरे पास दो ऑप्शन है. या तो मेरे पास मॉडल्स होने चाहिए, 3D मॉडल्स, या तो मेरे पास मॉडल्स होने चाहिए, okay, so that I can show to you in the class, or there is a one technique by which we can put, और वही टेक्निक के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. नाउ आइडेंटिटी, आप सबके घर में आपकी खुद की कुछ आइडेंटिटी रही होगी, लालू, बबलू, पिंटू, चिंटू, सो एंड सो. और एक आइडेंटिटी ऐसी है जो आपके आधार कार्ड में या मार्कशीट्स में दी है. तो बिल्कुल उसी तरह से स्टीरियो मॉलिक्यूल्स की आइडेंटिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो देयर आर टू वेज टू असाइन द कॉन्फ़िगरेशन. वन इज रिलेटिव, यानी कि द वर्ड इटसेल्फ सेज रिलेटिव, उसका कॉन्फ़िगरेशन हम असाइन करेंगे विथ रेफरेंस टू सम स्टैंडर्ड्स. कोई स्टैंडर्ड कंपाउंड के साथ उस स्ट्रक्चर को हम कंपेयर करेंगे और उन्हीं के बेस पे we will be giving identity. And another is absolute one, unique identity of that stereo molecules. अगर मैं बोलूं आर आइसोमर तो इट इज एब्सोल्यूट आइडेंटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स. हर एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है. देयर आर टू वेज, वन इज रिलेटिव, अनदर इज absolute configuration, absolute identity. Okay, let's start with relative configuration first. Relative configurations is generally applicable to two type of structures. Believe me, एक कार्बोहाइड्रेट्स के जितने भी स्ट्रक्चर्स है, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि सुगर्स, ग्लूकोज, पेंटोस, सुक्रोस, लैक्टोस, जो भी सुगर्स है उसको हम ऑलवेज यूज करते हैं आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से. या तो वो डी सीरीज के सुगर्स है या तो वो एल सीरीज के शुगर है. अपनी बॉडी में जो शुगर है वो डी सीरीज की है, इसलिए हम ग्लूकोज को बोलते हैं डेक्सट्रोज. और दूसरी चीज अमाइनो एसिड्स, दूसरी चीज अमाइनो एसिड्स, ये दो मॉलिक्यूल्स जहां भी आएंगे वहां पे ऑलवेज हम यूज करेंगे रिलेटिव कन्फिगुरेशंस की फिनोमिना. इसका मतलब ये नहीं कि आप कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर में एब्सोल्यूट कन्फिगुरेशंस ना असाइन कर सको. यू कैन ऑलवेज असाइन गाइस, बट कार्बोहाइड्रेट और अमाइनो एसिड्स की स्ट्रक्चर की जो आइडेंटिटी है वो जनरली रिलेटिव कन्फिगुरेशन से उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. यू मस्ट बी फैमिलियर. सत्यनारायण बुक में जब आप अमाइनो एसिड्स चैप्टर पढ़ो, साफ साफ दिखाए एल अल्फा एमिनो एसिड कन्फिगुरेशन. कार्बोहाइड्रेट्स में डेक्सट्रोस, बार बार ये वर्ड आ रहा है. डी, डी सीरीज ऑफ सुगर, एल सीरीज ऑफ सुगर. फाइन.
तो व्हाट इज दैट? तो रिलेटिव कन्फिग्रेशंस ये दो मॉलिक्यूल्स में हम अक्सर अप्लाई कर सकते हैं। ये दो को छोड़ दो तो ड्रग्स के स्ट्रक्चर में भी हम रिलेटिव कन्फिग्रेशंस तो असाइन करेंगे ही करेंगे। वी कैन ऑलवेज असाइन, बट जब मैंने बताया कि ये दो टाइप्स के स्ट्रक्चर्स, कार्बोहाइड्रेट एंड अमाइनो एसिड्स, उसमें अक्सर हम these are the common examples where you will definitely find D and L configurations. अच्छा, रिलेटिव कन्फिग्रेशंस की मैंने क्या डेफिनेशंस बोली कि कन्फिग्रेशन इज असाइन विथ रिस्पेक्ट टू सम स्टैंडर्ड्स, और जहां तक कार्बोहाइड्रेट्स की बात है वहां तक स्टैंडर्ड कंपाउंड जो है वो है ग्लिसराल्डिहाइड। क्या है? ग्लिसराल्डिहाइड। तो ग्लिसराल्डिहाइड जो कंपाउंड है वो रेफरेंस कंपाउंड है, और उनका स्ट्रक्चर है जिसमें एक किराल सेंटर है, ऊपर है CHO, नीचे है CH2OH, HNOH। अब मैं आप लोगों को एक और चीज बताने चाहता हूं, क्योंकि आज पूरा सेशन हम कॉन्फ़िगरेशन ही असाइन करने वाले हैं। तो स्टीरियो मॉलिक्यूल्स को आप आसान तरीके से 2D व्यू में अगर बताना है तो ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर से उसमें मैंने जो बॉन्ड्स यूज किए हैं, दिस बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज अ स्टीरियो बॉन्ड्स। डार्क बॉन्ड जो है इट मींस वो सब्स्टिट्यूएंट्स हमारी और आते हैं, बाहर आते हैं, इट इज आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन। और ये जो डैश टाइप ऑफ बॉन्ड है, द बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट्स जो है, इट इंडिकेट्स इट इज बिहाइंड द प्लेन, बिहाइंड द प्लेन। अब मान लो ग्लिसराल्डिहाइड में तो एक ही किराल सेंटर है, बट अगर ग्लूकोज की बात करूं तो ग्लूकोज में 4 किराल सेंटर्स है डियर स्टूडेंट्स। तो 4 किरल सेंटर्स में इस टाइप के बॉन्ड अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो स्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एमिल फिशर। एमिल फिशर, एमिल फिशर ने क्या किया, 3D जो स्ट्रक्चर्स थे, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स है, उसको उन्होंने एक फॉर्मूला देके 2D व्यू में कन्वर्ट कर दिया। Emil Fischer has given the formula to convert 3 dimensional structures into 2 dimensional structures, और उसी स्ट्रक्चर को हम यूजुअली इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। जहां जहां भी इस टाइप की एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बताऊं, अभी एनांशियोमर में भी मैंने कुछ ऐसे ही टाइप के बॉन्ड बताए थे। तो दिस नथिंग बट दिस इज फिशर्स प्रोजेक्शन। फिशर्स प्रोजेक्शंस यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो एज पर फिशर्स प्रोजेक्शन अबव द प्लेन है, और वर्टिकल में जो सब्स्टिट्यूएंट है वो एज पर फिशर्स प्रोजेक्शंस दे आर बिहाइंड द प्लेन, प्लेन से प्लेन के पीछे जा रहा है। आई रिपीट अगेन, जहां जहां भी मैं इस टाइप के बॉन्ड रिप्रेजेंट करूं गाइस, तो उसका मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल पे जो सब्स्टिट्यूएंट है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल पे 2 किरल सेंटर है तो 4 सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे, तो दे आर ऑलवेज अबव द प्लेन। वर्टिकल में यानी कि टॉप एंड बॉटम, यहां पे जो दो सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे दे आर बिहाइंड द प्लेन, दे आर बैक साइड ऑफ द प्लेन, दे आर बिहाइंड द प्लेन। ओके, तो फिशर्स प्रोजेक्शन इज क्लियर गाइस, और एनी कंफ्यूजन इन फिशर्स प्रोजेक्शंस, बिकॉज बहुत सारे एग्जांपल्स हम फिशर्स प्रोजेक्शन से डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए फिशर्स प्रोजेक्शन इज क्लियर। इस टाइप के एग्जांपल्स जो भी मैं लू उसमें हॉरिजॉन्टल पे जो सब्स्टिट्यूएंट है दे आर अबव द प्लेन, और वर्टिकल में जो सब्स्टिट्यूएंट है दे आर बिहाइंड द प्लेन, बैक साइड ऑफ द प्लेन। गाइस, इज इट क्लियर everybody? Fisher's projection is clear? Just do reply, Fisher's projection is clear? Okay, fine, do actively participate guys, please, I am requesting you all. Okay, fine, no problem, thank you all. Okay, तो ग्लिसराल्डिहाइड स्टैंडर्ड कंपाउंड है। अब ये स्ट्रक्चर्स को हम कंपेयर करेंगे कोई भी शुगर के स्ट्रक्चर के साथ। ग्लिसराल्डिहाइड में एक ही किरल सेंटर है, तो यहां पे जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, वो अगर राइट हैंड साइड है, वो अगर राइट हैंड साइड है तो कॉन्फ़िगरेशन इज कैपिटल डी।
अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो कन्फिग्रेशन इज कैपिटल एल। ये हम जब सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, 5 जहां पे भी स्टीरियो केमिस्ट्री कंसेप्ट आते हैं, वहां पे कॉमन जो रेफरेंस बुक है उसमें ऐसा ही दिया है कि हाइड्रोक्साइल ग्रुप अगर राइट हैंड साइड है तो कैपिटल डी, लेफ्ट हैंड साइड है तो कैपिटल एल। अब आज कुछ नया सीखने वाले हैं गाइस। चलो, D and L sugars, these are some examples of sugars so that the concept will be very clear. D-glyceraldehyde, D-glyceraldehyde का स्ट्रक्चर ग्लूकोज के साथ अगर कंपेयर करूं तो ग्लूकोज में कितने किराल सेंटर है? 1, 2, 3 एंड 4। तो सबसे लास्ट वाला किराल सेंटर है जहां पे मैंने येलो हाईलाइट किया है, वो अगर राइट हैंड साइड है, इफ यू कंपेयर दी स्ट्रक्चर विथ ग्लिसरॉल्डिहाइड तो उसको हम बोलेंगे डी सुगर। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड है तो उसको हम बोलेंगे एल सुगर। चलो, रिबोस का एग्जांपल है जो 5 कार्बन सुगर है। तो 5 कार्बन सुगर में 3 किराल सेंटर है, तो 3 किराल सेंटर में तीसरा किराल सेंटर है, वहां पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप, if it is on a left hand side, if you compare this structure with glyceraldehyde तो उसको हम बोलेंगे एल सुगर, और अगर राइट हैंड साइड है तो उसको हम बोलेंगे डी सुगर, डी फ्रुक्टोस। दिस इज अगेन वन मोर एग्जांपल ऑफ व्हाट यू कैन से सुगर। चलो, वही चीज हम अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर में अप्लाई करें। कार्बोहाइड्रेट के जितने भी स्ट्रक्चर से उसमें फंक्शनल ग्रुप था OH। अमाइनो एसिड्स में फंक्शनल ग्रुप है एमिनो। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड है तो एल, अगर वो राइट हैंड साइड है तो कैपिटल डी। दो चीज मैं बहुत इजी तरीके से आप लोगों को बताना चाहता हूं। कार्बोहाइड्रेट एंड अमाइनो एसिड्स में यूजुअली हम रिलेटिव कन्फिगुरेशंस अप्लाई करते हैं। चलो, कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स रहते हैं, अमाइनो एसिड्स में एमिनो ग्रुप रहते हैं। तो एक चीज तय है कि हाइड्रोक्साइल ग्रुप अगर राइट हैंड साइड है तो उसको हम डी बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम एल बोलेंगे, फाइन। अब ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप की जगह मैं वर्ड रिप्लेस करना चाहता हूं फंक्शनल ग्रुप। आई एम रिप्लेसिंग द वर्ड विथ फंक्शनल ग्रुप। कि स्टीरियो सेंटर्स के साथ जो फंक्शनल ग्रुप है, जो फंक्शनल ग्रुप है एक किराल सेंटर की अगर मैं बात करूं तो वो अगर राइट हैंड साइड है तो उसको डी, लेफ्ट हैंड साइड है तो उसको एल। गाइस, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि ग्लूकोज में 4 किराल सेंटर है, तो ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप के बारे में क्यों हमने डिस्कस नहीं किया भाई? Why we have not discussed about the hydroxyl group which are present on the other carbon? क्यों सबसे लास्ट वाला जो कार्बन स्टीरियो सेंटर है वहां पे हमने फोकस किया और असाइन कर दिया कन्फिगुरेशंस डी एंड एल? बात ये है गाइस, ये कॉमन नॉर्मल रेफरेंस बुक में नहीं दिया है। तो आज हम जो नया सीखने वाले हैं वो ये चीज है कि देर इज अ रूल, देर इज अ जनरल रूल whenever you are applying relative configurations। तो रूल ये कह रहा है कि you always have to check the position of functional group। अभी मैंने हाइड्रोक्साइल ग्रुप की जगह तो वर्ड पूरा रिप्लेस कर दिया। जरूरी नहीं है कि हर जगह हाइड्रोक्साइल ग्रुप ही हो, नॉट नेसेसरी एट ऑल। जैसे हमने देखा अमाइनो एसिड में, तो अमाइनो एसिड्स में NH2 ग्रुप है। क्या है? NH2 ग्रुप है। इसलिए यहां पे मैंने कॉमन लिखा कि भाई फंक्शनल ग्रुप जो हो उसको चेक करना है, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। बट कहां? 6 किराल सेंटर से तो कहां? तो यहां पे साफ साफ लिखा है, नोट डाउन गाइस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाईएस्ट नंबर्ड स्टीरियो सेंटर पे आपको देखना है फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन। अगर वो राइट हैंड साइड है कैपिटल डी, इफ इट इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड कैपिटल एल। आई रिपीट अगेन, हाईएस्ट नंबर्ड स्टीरियो सेंटर। अब आप वापिस वो एग्जांपल्स पे आओ। रिबोस, तो रिबोस में 3 किराल सेंटर है, ये पहला किराल सेंटर, ये दूसरा, ये तीसरा। तो हाईएस्ट नंबर्ड स्टीरियो सेंटर वो तीसरा कार्बन हुआ। इफ यू टॉक अबाउट फॉर एन एग्जांपल ग्लूकोज, तो उसमें 4 किराल सेंटर है भाई, तो चौथा किराल सेंटर पे आपको देखना है फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भाई।
दिस इज व्हाट वी नीड टू लर्न। आज ये सेशन से हम इतना तो लर्न जरूर करेंगे कि जो बेसिक्स है, जो कॉमन रेफरेंस बुक में नहीं दिए है, वो बेसिक्स आज लर्न करना है। चलो एक एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के सामने रखा है। यहां पे हम लोगों को असाइन करना है DNL configurations। DNL configurations, this is one of the most popular drug as far as antibiotic portion is concerned. It is called as a chloramphenicol guys। chloramphenicol का ये स्ट्रक्चर है। अब आप देखो, फॉर ए रेफरेंस के हिसाब से मैंने IUPAC नाम मेंशन किया है। ओके, तो IUPAC नाम में फर्स्ट कार्बन पे ये पूरा नाइट्रोफिनल ग्रुप अटैच हुआ है, यानी कि ये पहला स्टीरियो सेंटर, ये दूसरा स्टीरियो सेंटर। अब आप लोग मुझे बताओ, देखो अक्सर मैं बोल रहा हूं कि आप लोग गलती कर बैठोगे, हाइड्रोक्साइल ग्रुप पे फोकस नहीं करना है। यूजुअली क्या करते हैं कि हाइड्रोक्साइल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड है तो हम एल कह देते हैं। नहीं गाइस, ऐसा नहीं करना है। रूल अभी अभी मैंने आप लोगों को समझाया। क्या रूल है? कोई भी स्ट्रक्चर हो, उसमें सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ किराल सेंटर्स कैलकुलेट करो। इसमें कितने किराल सेंटर्स है? हाउ मेनी किराल सेंटर्स आर देयर इन स्ट्रक्चर? वो मुझे बताओ सबसे पहले। मैंने ऑलरेडी नंबर दे रखा है। हाउ मेनी किराल सेंटर्स आर देयर इन स्ट्रक्चर? यस प्लीज। हाउ मेनी किरल सेंटर्स? 2। यस। तो दूसरा किरल सेंटर जो है, यहां पे ये लंबा चौड़ा फंक्शनल ग्रुप है, वो किस साइड है? राइट हैंड साइड है। इसीलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा कैपिटल डी। क्या रहेगा? कैपिटल डी। इसीलिए मैंने जानबूझ के ये एग्जांपल्स लिया है, ताकि ये एग्जांपल सबसे पहले तो ये ड्रग का है, नंबर 1। नंबर 2, जो मैंने जब चालू किया कि रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस, तो भाई कार्बोहाइड्रेट और अमाइनो एसिड्स में ही हम अप्लाई करते हैं। तो बात सीधी सी आती है कि सर हाइड्रोक्साइल ग्रुप होगा या तो NH2 ग्रुप होगा। नहीं, ये ड्रग का एग्जांपल्स है। अपने रूल को फॉलो करो। व्हाट इज द रूल? ये रूल आज अच्छी तरह से लर्न करना है। दिस इज द रूल, जनरल रूल। कोई भी स्ट्रक्चर आपको दे, बस केवल क्या करना है, उसमें कितने स्टीरियो सेंटर्स है सबसे पहले, और सबसे लास्ट स्टीरियो सेंटर्स जो है, वहां पे फंक्शनल ग्रुप अगर राइट हैंड साइड है तो कैपिटल डी, लेफ्ट हैंड साइड है तो कैपिटल एल। इज इट क्लियर गाइस? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन इज क्लियर। आई एम टॉकिंग अबाउट रूल विथ एग्जांपल्स। रूल विथ एग्जांपल्स। ओके, ओके, फाइन। तो बस ऐसी चीज, एंड दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमाइंड इज गाइस। एपोमाइंड एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पे सबसे टफेस्ट चीजें जो है वो आसान तरीके से आपको सीखने को मिलती है। दिस इज व्हाट द स्पेशलिटी ऑफ अबाउट द कोचिंग of Appomind online offline is. I'm just explaining these things because since last so many years I'm associated with the Appomind coaching academy. Fine, okay, let's go ahead. So I think there should not be having any confusion regarding relative configurations. अब मैं लास्ट में कुछ एग्जांपल सॉल्व कराने वाला हूं, तो वहां पे आप लोगों को DNL के आंसर्स देने पड़ेंगे। इट इज वेरी इजी, नो डाउट अबाउट दैट, बट यू शुड ऑलवेज फोकस। ओके, चलो अब बात आती है असाइनमेंट ऑफ एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन गाइस। सबसे टफ मैं बोल सकता हूं कि अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से ये चीजें दे रखी है, बट जब हम प्रैक्टिस करते हैं, एग्जाम्पल्स बुक में जो है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस के, वो उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो हम सही तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। बट जब अननोन स्ट्रक्चर्स आता है तो वहां पे हम यूजुअली गलती कर बैठते हैं। तो बुक में जो रूल्स दिए हैं, तो दे हैव गिवन ऑन देयर ऑन व्हाट यू कैन से ड्राफ्टेड रूल्स, बट माय with the experience of so many different books of stereochemistry, I have 3 rules। और ये रूल्स को अगर आप फॉलो करते हो, इफ यू फॉलो दिस रूल्स, बिलीव मी गाइस, एक भी स्ट्रक्चर रॉन्ग नहीं जाएगा। आज वो चीज में हमको मास्टरी लानी है। ओके, देयर आर 3 रूल्स फॉर दैट।
सबसे पहला रूल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू असाइन दी प्रायोरिटीज एज पर सीआईपी रूल्स। सीआईपी यानी कि गोल्ड प्रीलोग सिस्टम, आई रिपीट, सिस्टम, सेट सिस्टम्स बनाई है हाउ टू असाइन दी प्रायोरिटीज। तो ये पहला रूल इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो रूल्स में तो केवल हमको फॉलो ही करना है, कुछ करना नहीं है। बट अगर प्रायोरिटीज गलती से असाइन कर दी, प्रायोरिटीज अगर गलत असाइन कर दी, तो समझो कॉन्फ़िगरेशन अपना रॉन्ग ही आएगा। सेकेंड रूल ये कह रहा है, वी विल सी ईच एंड इंडिविजुअल रूल विथ लॉट ऑफ एग्जांपल्स टुडे गाइस। सेकेंड रूल है चेक, लोएस्ट प्रायोरिटी शुड ऑलवेज बैक साइड ऑफ द प्लेन। आपको केवल चेक करना है कि लोएस्ट प्रायोरिटी 1 2 3 4, उसमें जो 4 नंबर है वो प्लेन के पीछे होना चाहिए। तो मैं एक चीज बता दूं कि फिशर्स प्रोजेक्शंस की अगर मैं बात करूं, तो वो सब्स्टिट्यूएंट्स हमेशा टॉप या बॉटम पे आना चाहिए, शुड ऑलवेज बैक साइड ऑफ द प्लेन। अगर नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, आपको केवल और केवल आंसर देना है, योर प्रायोरिटी इज यस और नो। लोएस्ट प्रायोरिटी बैक साइड है तो आपको हाँ बोलना है, लोएस्ट प्रायोरिटी बैक साइड नहीं है तो यू कैन सिंपली से द आंसर इज नो। ओके, फिर रोटेट योर आइज फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट प्रायोरिटी। If your eyes rotate clockwise, it is R. Rotate as anti-clockwise, it is always S. R stands for rectus, S stands for sinister. तो उसका जो शॉर्ट फॉर्म है RNS, पहला जो लेटर है उससे हम आइडेंटिटी देंगे स्टीरियो मॉलिक्यूल को। लोएस्ट प्रायोरिटी अगर बैक साइड है, इफ योर लोएस्ट प्रायोरिटी इज बैक साइड और अपनी आइस को रोटेट करते हो हाईएस्ट टू लोएस्ट, तो वो अगर क्लॉकवाइज है तो आर, एंटी क्लॉकवाइज है तो वो एस। ओके, अगर एस पर फिशर्स प्रोजेक्शंस आपकी प्रायोरिटीज बैक साइड, लोएस्ट प्रायोरिटी बैक साइड नहीं है, कोई बात नहीं, तो देयर आर अगेन टू ऑप्शंस। बैक साइड नहीं है तो स्ट्रक्चर मॉडिफाई करो और सब्स्टिट्यूएंट्स को पीछे ले जाओ। यानी कि मान लो यहां पे लोएस्ट प्रायोरिटीज है अपनी, तो उसको टॉप या बॉटम पे ले जाना पड़ेगा गाइस। बट उसको अगर इस तरह से ले जाते हो तो स्ट्रक्चर पूरा बदल जाएगा, और ऐसा नहीं करना है हमको। हमको केवल और केवल ये दो शॉर्टकट्स याद रखने हैं कि एज पर फिशर्स प्रोजेक्शंस, अगर लोएस्ट प्रायोरिटीज हॉरिजॉन्टल साइड पे है, हॉरिजॉन्टल यानी कि बैक साइड नहीं है, तो आपको कॉन्फ़िगरेशंस इन्वर्ट करना है। स्ट्रक्चर पर से अगर असाइन करते हो आर, तो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशंस विल बी एस। हम एग्जांपल्स के साथ हर एक चीज देखेंगे, डोंट वरीज। बट अगर लोएस्ट प्रायोरिटीज वर्टिकल पोजीशन में है, यानी कि ऑलरेडी बैक साइड ही है, देन यू नो नीड टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशंस। जो स्ट्रक्चर पर से, तीसरा रूल में जो स्ट्रक्चर पर से कॉन्फ़िगरेशंस आया, यू हैव टू असाइन दैट कॉन्फ़िगरेशंस। तो सीधी बात, सेकेंड रूल जो है उसमें आपको बहुत चौकन्ना रहना है। आपको जवाब देना है हाँ या ना। अगर हाँ है कैरी ऑन, अगर ना है तो रुक जा भाई, रुक जा, इसलिए कि जो स्ट्रक्चर पर से कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसको हम कहीं ना कहीं इन्वर्ट करेंगे। ये शॉर्टकट्स बुक में नहीं दिए हैं गाइस, दिस आर द इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स, और इसलिए हम एपोमाइंड्स में ये सब चीजें करवा रहे हैं। दिस इज अ वेरी वेरी यूजफुल, सिंपल एंड इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स। चलो, अब बात आती है प्रायोरिटी असाइनमेंट की। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं गाइस कि प्रायोरिटी असाइन करना वो कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें भी 3 या 4 अलग अलग रूल्स है। यू जस्ट हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो दैट रूल्स, और अगर ये रूल को फॉलो करते हो तो आई एम श्योर कि कॉन्फ़िगरेशंस नहीं गलत रहेगा। ओके, वर्ल्ड कप 2024 ने एक चीज हम सबको सिखा दी है कि
when situation is not in your favor, still you have that capability to make it favorable one. तो कभी कभी स्टूडेंट्स अक्सर बोलते हैं कि सर हमारे पास टाइम बहुत कम है, ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा. नाउ सी द हाइलाइट्स ऑफ वर्ल्ड कप 2024. अगर लास्ट 5 ओवर में गेम चेंज हो सकती है तो यू कैन डू एनीथिंग्स इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. यू कैन डेफिनेटली विन. ये चीज हमको वर्ल्ड कप की हाइलाइट्स में से सीखने को मिलेगा. इस और सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज. ओके फाइन. चलो अब बात आती है सीआईपी रूल्स की. रूल नंबर 1. अब असाइनमेंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस में, यस, असाइनमेंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस में 3 रूल थे. उसमें सबसे पहला रूल था कि यू हैव टू असाइन द प्रायोरिटी एज पर सीआईपी रूल्स. ओके. अब सीआईपी रूल्स में हम 4 अलग अलग रूल्स पढ़ेंगे. सबसे पहला सीक्वेंस रूल नंबर 1. रूल नंबर 1 में शॉर्टकट्स याद रखना है तो इस तरह से आप याद रख सकते हो. एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर. चलो हम कॉन्फ़िगरेशंस असाइन करने से बहुत सारे एग्जांपल्स लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले जो एग्जांपल्स हम देंगे वो बहुत सिंपल रहेगा. वो केवल एक किराल सेंटर वाले एग्जांपल्स हम लेंगे. ये किराल सेंटर है. ओके. 4 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स मैंने बिठा दिए. ओके. नाउ यू हैव टू असाइन द प्रायोरिटीज. तो सबसे पहला जो सीक्वेंस रूल है वो ये है कि हायर एटॉमिक नंबर, यानी कि कार्बन का अटैचमेंट आपको देखना है. यहां पे कार्बन का अटैचमेंट कार्बन से है, यहां पे कार्बन का अटैचमेंट क्लोरीन से है, ब्रोमीन से है और हाइड्रोजन से. सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर है ब्रोमीन का. तो ब्रोमीन विल हैव अ फर्स्ट प्रायोरिटी, chlorine will have a second priorities, carbon will have a third priority, and hydrogen it has a fourth priorities. Guys, do interact. प्रायोरिटीज में सबसे पहला रूल हायर एटॉमिक नंबर. सबसे पहला रूल एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है. किराल सेंटर के साथ जो एटम अटैच है वो एटम्स का एटॉमिक नंबर देखना है. ओके. चलो मैंने प्रायोरिटीज असाइन कर दी. अब रूल नंबर 2 ये था, चेक लोएस्ट प्रायोरिटी शुड ऑलवेज बैक साइड ऑफ द प्लेन. यहां पे मुझे आंसर दो गाइस, यस या नो. लोएस्ट प्रायोरिटीज एज पर फिशर्स प्रोजेक्शन बैक साइड है कि नहीं है. नहीं. यस, एब्सोल्युटली राइट. इट इज ऑन अ हॉरिजॉन्टल. यस, एब्सोल्युटली राइट गाइस. ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल. चलो असाइन, रोटेट योर आइज फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट प्रायोरिटीज. हाईएस्ट टू लोएस्ट प्रायोरिटीज के हिसाब से हम अपनी आइस को घुमाते हैं. 1 2 एंड 3. योर आइस रोटेट क्लॉकवाइज. ओके. सो कॉन्फ़िगरेशन इज आर, बट यहां पे देखना है कि लोएस्ट प्रायोरिटीज बैक साइड नहीं है, तो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशंस विल बी एस. सिंपल एग्जांपल्स के साथ में जा रहा हूं. एट द एंड ऑफ सेशंस वी विल बी डिस्कसिंग टफेस्ट एग्जांपल. और ये जो चीज है, इसलिए मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल्स के हिसाब से जा रहा हूं. रूल नंबर 1, डोंट से तन्वी एल. L is a different one. It is a relative configuration. We always have to focus right now when you talk about absolute configuration is R and S. तो fine. सिंपल एग्जांपल्स. रूल नंबर, सीक्वेंस रूल में 2 टाइप है. एक एटॉमिक नंबर का रूल है, दूसरा जो रूल है इट्स ऑल अबाउट एटॉमिक नंबर्स के बाद आता है मास नंबर. अगर कार्बन के साथ जुड़े हुए, किराल सेंटर्स के साथ जुड़े हुए जो 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है जिसका एटॉमिक नंबर सेम है, फॉर एन एग्जांपल, चलो CH3, hydrogen, deuterium and tritium. Deuterium is isotope of hydrogen. Tritium is isotope of hydrogen. Isotope यानी कि एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट वन. चलो सीक्वेंस रूल नंबर 1B. दिस इज a 1A atomic number. Now we are focusing mass number, that is 1B. Okay.
कार्बन के साथ कार्बन का अटैचमेंट है, हाइड्रोजन है, डी है, टी है। तो ऑलवेज यू हैव टू स्टार्ट विथ एटॉमिक नंबर फर्स्ट। तो एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है? तो ये कार्बन का। अब बाकी बचे 3 सब्स्टिट्यूएंट में एटॉमिक नंबर सेम है, तो यू कैनॉट गिव प्रायोरिटीज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, देन यू हैव टू फॉलो हायर मास नंबर। मास नंबर यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो ज्यादा है, मतलब वो हैवियर है। दैट एटम इज हैवियर, मास उसका ज्यादा है। तो ट्रिटियम का मास ज्यादा है एज कंपेयर टू ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम का मास ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो इट इज एज सिंपल एज, सबसे ज्यादा मास वाले जो है वो ट्रिटियम है, तो यहां पे हम सेकेंड प्रायोरिटीज असाइन करेंगे, ड्यूटेरियम पे थर्ड एंड हाइड्रोजन पे फोर्थ। चलो, लोएस्ट प्रायोरिटीज बैक साइड है कि नहीं है? व्हाट इज योर आंसर गाइस? व्हाट इज योर आंसर गाइस? यस, फाइन, गुड। चलो, 1 2 एंड 3, इट इज काउंटर क्लॉकवाइज, सो कॉन्फ़िगरेशन इज एस। द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन इज एस। दो सीक्वेंस रूल हमने अच्छी तरह से लर्न किए, वन इज एटॉमिक नंबर, अनदर इज मास नंबर। मैं जितने भी एग्जांपल्स आज डिस्कस करने वाला हूं उसमें हर एक रूल में एग्जाम्पल सबसे पहले एक किराल सेंटर का हम लेंगे, उसके बाद ही 2 3 4 किराल सेंटर्स पे जाएंगे। तो आई थिंक, आई होप सीक्वेंस रूल नंबर 1 इज क्लियर गाइस, इज इट? कैन वी गो अहेड? सीक्वेंस रूल नंबर 1 इज क्लियर? ओके। सीक्वेंस रूल नंबर 2, अब बात ये आई भाई, एटॉमिक नंबर भी सेम है, मास नंबर भी सेम है, दोनों चीजें सेम है। नाउ व्हाट टू डू? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्वेंस रूल इन असाइनिंग कॉन्फ़िगरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्वेंस रूल गाइस। चलो, पहले डिस्कस करते हैं वो चीज एग्जाम्पल के साथ। नाउ, right now we are putting the examples. ओके, चलो, सबसे पहला, ऑलवेज यू हैव टू स्टार्ट विथ एटॉमिक नंबर फर्स्ट। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे पहला है, वो ज्यादा है। ओके, एटॉमिक नंबर के बाद आता है हायर मास नंबर। अब ये देखो, ये कार्बन के साथ कार्बन, ये कार्बन के साथ कार्बन, अब ये दो कार्बन जो है उसके एटॉमिक नंबर भी सेम है, मास नंबर भी सेम है। नाउ व्हाट टू डू? व्हाट टू डू? क्या करें? तो इफ टू ग्रुप्स कैनॉट बी डिसाइडेड बाय रूल नंबर 1, 1A 1B दोनों आ गए, तो क्या करें? कोई बात नहीं, मैं यहां पे शॉर्टकट्स ले रहा हूं। शिफ्टिंग, शॉर्टकट्स बुक में नहीं दिया है, शिफ्टिंग टू द नेक्स्ट एटम, शिफ्टिंग टू द नेक्स्ट एटम। नेक्स्ट एटम पे आपको जाना है, प्रायोरिटीज हमें ये कार्बन की करनी है, बट ये कार्बन के साथ दोनों ही कार्बन है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? वो कार्बन से आपको बाहर आना पड़ेगा और यू नीड टू गो टू द नेक्स्ट एटम, यानी कि शिफ्टिंग टू द नेक्स्ट एटम। तो अब मैं यहां पे आ गया हूं गाइस, ये कार्बन है और ये कार्बन है। अब इन दोनों की कंपैरिजन रहेगी। कंपैरिजन में ऐसा है, कब तक और कहां तक कंपैरिजन करनी है उसमें भी शॉर्टकट है। एक और स्टेटमेंट नोट डाउन कर लो, टिल यू फाइंड, टिल यू फाइंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, टिल यू फाइंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस। चलो, वो कैसे आइडेंटिफाई करना है गाइस, हम बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं इसके। ओके, शिफ्टिंग टू द नेक्स्ट एटम, यानी कि मैं यहां पे इस कार्बन के बारे में अब बात करने वाला हूं। इस कार्बन के साथ कौन जुड़ा है भाई? तो एक हाइड्रोजन है, दूसरा कार्बन है, नीचे है दो हाइड्रोजन, एक नीचे, तो यहां पे तीनों हाइड्रोजन है गाइस। दिस कार्बन इज अटैच विथ ऑल 3 हाइड्रोजन, अटैच विथ ऑल 3 हाइड्रोजन। चलो,
ये हाइड्रोजन्स की कंपैरिजन करनी है ये हाइड्रोजन के साथ, सिमिलर ये हाइड्रोजन की करनी है ये हाइड्रोजन के साथ, तीसरा हाइड्रोजन यहां पे है और यहां पे गाइस क्या है, कार्बन। तो दिस इज व्हाट वी कैन से पॉइंट ऑफ डिफरेंस, इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ डिफरेंस। यानी कि रूल ऐसा कह रहा है कि अगर एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर सेम है तो आपको नेक्स्ट एटम पे तो जाना पड़ेगा, वहां पे आपको इस तरह से बाइफर्केशन करना है। और जहां पे आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस लगे, पॉइंट ऑफ डिफरेंस यानी कि एटॉमिक नंबर में डिफरेंस, ये हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, एक से ज्यादा है, कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है 6, तो दिस विल टेक प्रायोरिटी ओवर दिस वन, यानी कि CH2CH3 विल टेक प्रायोरिटी ओवर CH3 ग्रुप, यानी कि नीचे वाला ग्रुप। आई रिपीट अगेन, फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमने एटॉमिक नंबर के हिसाब से दे रखी है, दिस इज अ सेकेंड प्रायोरिटी, दिस इज अ थर्ड प्रायोरिटी, दिस इज अ फोर्थ प्रायोरिटी। चलो यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। एटॉमिक नंबर सेम है तो मास नंबर भी सेम है तो शिफ्टिंग टू द नेक्स्ट एटम, नेक्स्ट एटम पे जाने के बाद व्हाट यू हैव टू डू द एक्सरसाइज, यू हैव टू फाइंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस गाइस, पॉइंट ऑफ डिफरेंस एटॉमिक नंबर के हिसाब से। चलो सेकेंड थर्ड फोर्थ प्रायोरिटी मैंने असाइन कर दी, ओके फाइन गुड। अब आप बताओ लोएस्ट प्रायोरिटी बैक साइड है कि नहीं है, यस और नो, लोएस्ट प्रायोरिटी बैक साइड है कि नहीं है, नो, योर आंसर इज नो, नो प्रॉब्लम, रोटेट योर आइज फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, तो इट इज अ काउंटर क्लॉकवाइज एस कॉन्फ़िगरेशन, बट लोएस्ट प्रायोरिटी बैक साइड नहीं है, सो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशंस विल बी आर कॉन्फ़िगरेशन, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशंस विल बी आर कॉन्फ़िगरेशंस। मेहता एंड मेहता एक बुक है स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए, अच्छी बुक है, उसमें ये शॉर्टकट्स नहीं दिए हैं, उसमें जो मैंने आप लोगों को बताया कि अगर अगर लोएस्ट प्रायोरिटी बैक साइड नहीं है तो देयर इज अ वन मेथड कि लोएस्ट प्रायोरिटी को वर्टिकल पोजीशन पे सेट करते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है वो आपको करना पड़ता है, बट ऐसे लंबी एक्सरसाइज में हम नहीं जाएंगे। वी डू रिमेंबर ऑलवेज अ शॉर्टकट्स, केमिस्ट्री को अगर लाइक करना है, केमिस्ट्री को इंटरेस्ट क्रिएट करना है, यू डेफिनेटली हैव टू हैव शॉर्टकट्स, कुछ टेक्निक्स है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू ट्राई टू फाइंड शॉर्टकट्स, आई एम ऑलवेज टॉकिंग अबाउट शॉर्ट ट्रिक्स, छोटी छोटी जो ट्रिक्स है वो, ओके फाइन। सो जो मैंने अभी आप लोगों को बताया वो इन इन शब्दों में है, यू कैन जस्ट सी कि व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू फाइंड अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस, until you have to find a point of difference, okay चलो एक एग्जांपल है जो मैंने अभी अभी आप लोगों के साथ शेयर किया है कि यहां से सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है, तो इस तरह से लाइन बनाई, ये दो हाइड्रोजन्स, ये तीसरा हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन्स और ये तीसरा आया कार्बन, तो दिस इज व्हाट जस्ट रिसेंटली वी हैव सीन अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज। ऐसे बहुत एग्जांपल्स भी है, यू कैन सी हियर गाइस, यू कैन सी हियर, ये सब्स्टिट्यूएंट्स है, कोई पर्टिकुलर स्टीरियो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स नहीं है, बट अगर एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हुआ है तो यू कैन सी ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ये कार्बन यहाँ पे है ऑक्सीजन, तो दिस इज ऑलवेज बीन अ हायर प्रायोरिटीज, ये दोनों कार्बन तो यहाँ पे है ऑक्सीजन, तो दिस विल टेक प्रायोरिटी ओवर व्हाट यू कैन से दिस वन, राइट, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस गाइस। प्रायोरिटी असाइन जब आप करते हो और दो सब्स्टिट्यूएंट्स अगर एटॉमिक नंबर मास नंबर सेम है तब जाके ये एक्सरसाइज करनी है। मैंने एक स्टेटमेंट आप लोगों को बताया था गाइस अभी अभी कि until you find point of difference, चलो ये सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, ओके, यहाँ पे कार्बन है, दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, और तीसरा भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो कार्बन है उसमें तीसरा
कार्बन है। तो 2 के बाद तीसरे एटम पे मैंने जंप लगाया, तीसरे एटम पे मैंने जंप लगाया। चलो एक एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू व्हाट यू कैन से point is been clear. Okay, let me set one example. Okay, fine. Okay, चलो अब तो हमने सीक्वेंस रूल 1 एंड 2 दोनों ही हमने डिस्कस कर लिया है गाइस। चलो सबसे पहले मुझे बताओ, ये कार्बन के साथ कार्बन है, ये कार्बन के साथ कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। हु विल टेक फर्स्ट प्रायोरिटी? सबसे पहली प्रायोरिटी मैं कहां पे असाइन करूं? OH। यस, एब्सोल्युटली राइट। फोकस ऑन एटॉमिक नंबर गाइस, यहां पे अक्सर गलती रहेगी। ओके, फिर ये कार्बन है, ये भी कार्बन है। ये कार्बन के साथ जो एटम्स जुड़े हुए हैं वो है 2 हाइड्रोजन एंड अनदर इज कार्बन। यहां पे आप देखो CH2OH, तो 2 हाइड्रोजन, यस 2 हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन है। तो ये जो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि सीक्वेंस रूल अगर सही तरीके से समझते हो तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी कंफ्यूजन रहेगा। तो CH2OH will take priority second, this one is third one, this one is fourth one। चलो लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है तो वो बैक साइड नहीं है। यस, वो बैक साइड नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम, योर आंसर इज नो। चलो स्ट्रक्चर को घुमाओ, 1 2 3, इट इज क्लॉकवाइज, तो आर, बट लोएस्ट प्रायोरिटी बैक साइड नहीं है, तो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन विल बी एस। यस, एब्सोल्युटली राइट। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स गाइस, डू पार्टिसिपेट्स, एब्सोल्युटली राइट। ये सेशंस ऑनलाइन है तो जितने आई विल ट्राई माय बेस्ट to get more examples so that you have a better practice, but I think rule number 2 is been clear। next rule जो है sequence rule number 3। okay, fine। the third rule says that अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो जिसमें डबल बॉन्ड हो तो इसका मतलब यह है कि वो सब्स्टिट्यूएंट्स 2 बार अटैच हुआ है, यानी कि प्रायोरिटी इज डुप्लीकेटेड, प्रायोरिटी इज डुप्लीकेटेड। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो समझो कि वो सब्स्टिट्यूएंट्स 3 बार उसके साथ जुड़ा हुआ है, प्रायोरिटी इज ट्रिप्लीकेटेड। चलो ये एग्जांपल्स को मैं अच्छी तरह से समझने के लिए एक एग्जांपल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो आगे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इट्स ऑल अबाउट एग्जांपल ऑफ डी ग्लिसरॉल्डिहाइड गाइस, जहां पे हमने रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस अप्लाई किया। ओके, चलो फाइन। नाउ इट्स टाइम to apply the third rule। whenever in any substituents you find double bond, priority is duplicated, triple bond, priority is triplicated। चलो अब ग्लिसरॉल्डिहाइड, वैसे तो ये डी कन्फिगुरेशंस है, रिलेटिव कन्फिगुरेशंस की मैं बात करूं तो यहां पे मैंने उस टाइम पे बताया था कि डी एन एल का मतलब ये नहीं है कि आप आर एन एस अप्लाई ना कर सको। आर एन एस इज एब्सोल्यूट वन, यू कैन अप्लाई टू ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर गाइस। चलो अब यहां पे सबसे पहली प्रायोरिटीज किसको मैं दूं? सबसे पहली प्रायोरिटीज गाइस डू नहीं, मुझे प्रायोरिटी असाइन, सबसे पहले प्रायोरिटी OH। यस, कई सारे स्टूडेंट्स यहां पे गलती कर बैठते हैं कि सर ये एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसको हम पहले प्रायोरिटी असाइन करें। अरे भाई नहीं, ग्रुप पे नहीं जाना है गाइस, एटम पे फोकस करना है। किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा? तो कि O का। ओके, सेकेंड इज ये कार्बन और ये भी कार्बन। चलो तो रूल नंबर 2 हम अप्लाई करते हैं। ये कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन एंड एक हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रायोरिटी इज डुप्लीकेटेड, यानी कि
ये कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन है, 1 हाइड्रोजन है। इसका सिंप्लीफिकेशन, यहां पे नीचे आओ तो ये कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है एंड 1 ऑक्सीजन है। तो 2 हाइड्रोजन, ओके, यहां पे 2 ऑक्सीजन है गाइस। ओके, तो वेयर द पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, which one will take priority over which one, just do chat, which one will take priority over, yes, CHO, of course it will take priority over CH2OH, yes, absolutely right guys, 1 2 and 3, lowest priority backside nahi hai, 1 2 3, it is anti clockwise, okay, so original configurations will be R, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशंस विल बी आर। अभी तो मैंने एक एक स्टीरियो सेंटर हो वैसे ही एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं गाइस, और आगे आप लोगों ने कई सारे बच्चे ने आंसर्स दिए एस एस एस, नहीं, दिस इज आर कॉन्फ़िगरेशंस। ओके, चलो मैं एक और एग्जांपल्स प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को देता हूं, जस्ट असाइन फास्ट। If we talk, okay, one student's asking, sir, if we talk about L and D in this example, then we have to only focus on hydroxyl. Yes, beta. As I discuss in relative configuration, functional group, if you compare, and this is a reference standard glyceraldehyde itself, my dear students. तो वो अगर राइट हैंड साइड है तो कैपिटल डी, लेफ्ट हैंड साइड है तो कैपिटल एल, बट अगर आर एन एस असाइन करना है आपको तो डेफिनेटली यू हैव टू अप्लाई दिस रूल। चलो, सबसे पहली प्रायोरिटीज किसे मैं दूं गाइस, विच वन विल, विच इज फर्स्ट वन प्रायोरिटीज, सबसे पहली प्रायोरिटीज किसको दूं, यस ओ एच, एब्सोल्युटली राइट, यस, सी डबल बॉन्ड ओ, यानी कि 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यानी कि 3 कार्बन, ओके, ओके, चलो, ऑक्सीजन 2 है, हायर एटॉमिक नंबर्स आर 2, तो ऑब्वियसली पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहां से ही मुझे पता चल गया, ओके, फाइन, तो दिस इज अ सेकेंड, दिस इज अ थर्ड वन, ओके, लोएस्ट प्रायोरिटी बैक साइड ही है, एंड इफ यू रोटेट द आइस, of course it is a clockwise, the configuration is R, yes, absolutely right guys, good, good word. So I think, if you talk about RNS configurations, stereo molecules having one stereo centers, you will be very very clear guys if I say, is it clear? So we now focus on more than one chiral centers if it is present in the structure. Can I go ahead? Okay, fine, chalo, before we go ahead, there is a one structure for practice. There is a one structure for practice. Yes. Assign the priorities R and S. एक ही किरल सेंटर है, एक ही किरल सेंटर है. Quickly, will be given 2-3 minutes. Do assign. एक ही किरल सेंटर है. I want each and every students have an answer and hope the answer will must be the same one. Yes. Many students has given the reply R. Yes, very good. Okay, one student is saying S, okay, one is saying R. So again there are two possibilities, and of course the answers are coming from the students two. One is R, another is S. Okay, let me check. Okay, just tell me which one is having first priority, which one is having first priority. कार्बन के साथ जुड़ा हुआ एटम, तो ये है नाइट्रोजन. डू नॉट असाइन द प्रायोरिटी फर्स्ट टू दिस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. वो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको हम पहले असाइन करें, एटम पे फोकस करना है गाइस, यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती कर बैठते हैं. ओके, द सेकेंड वन इज, ये कार्बन के साथ कार्बन है, ये कार्बन के साथ कार्बन है, बट ये कार्बन के साथ
दो कार्बन है, एक डबल बॉन्ड में है, एक सिंगल बॉन्ड में है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन के साथ 3 कार्बन है। यस। और यहां पे अगर मैं बात करूं तो सी डबल बॉन्ड ओ ओ, यानी कि ये कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस विल बी अ सेकेंड वन, ओके, दिस विल बी द थर्ड वन, दिस विल बी द फोर्थ वन। लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे ही है। इसका मतलब ये हुआ डेफिनेटली कि आपको straight away you can rotate the ice. Yes, it is been clockwise 1 2 3. Okay, so it is clockwise. The correct answer is R. Correct answer is R. Okay, चलो अब कुछ ऐसे एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं जिसमें एक से ज्यादा किरल सेंटर हो। जहां पे एक और चीज ध्यान में रखनी है, इफ द कंपाउंड इज हैविंग मोर देन वन किराल सेंटर, एक से ज्यादा किराल सेंटर हो, व्हाट टू डू इन दैट पर्टिकुलर केस। गाइस, प्रॉब्लम्स यहां ही आते हैं। एक किराल सेंटर में तो सर आपने वो बता दिया, रूल्स अप्लाई करेंगे, विल बी मास्टर्स। बट एक से ज्यादा है तो बिफोर यू अप्लाई द रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to think about IUPAC रूल। IUPAC रूल, IUPAC रूल ये कहता है कि फंक्शनल ग्रुप कार्बन शुड हैव लीस्ट पॉसिबल नंबर। ओके, चलो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये जो स्ट्रक्चर मैंने मेंशन किया है उसमें कितने कार्बन है। हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर इन स्ट्रक्चर? हाउ मेनी कार्बन्स गाइस? हाउ मेनी कार्बन्स? 3। यस, एब्सोल्युटली राइट। दिस इज वन, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड। आईयूपीएसी रूल में एक चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी कि यू हैव टू सिलेक्ट अ लॉन्गेस्ट चेन। तो 3 कार्बन वाली चेन मैंने सिलेक्ट कर दी, आई एम वेरी मच फाइन। उसके साथ फंक्शनल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। न केवल फंक्शनल ग्रुप है, बट वो कार्बन बन जाता है किराल। अब मुझे ये बताओ कि जो आईयूपीएसी के हिसाब से नंबरिंग्स देनी है 1 2 3 सो एंड सो, तो ऑब्वियसली दिस विल बी कार्बन नंबर फर्स्ट, दिस विल बी कार्बन नंबर 2। हम कन्फ्यूगरेशंस, ये दो किराल सेंटर है तो दोनों ही किराल सेंटर पे कन्फ्यूगरेशंस अप्लाई करेंगे, दोनों ही किराल सेंटर पे कन्फ्यूगरेशंस अप्लाई करेंगे। बट द थिंग इज व्हाट, मेनी ऑफ टाइम्स एक से ज्यादा किरल सेंटर हो तो दिस इज अ टेक्निक, यू हैव टू मेक अ ब्रैकेट एंड यू हैव टू राइट द नंबर फर्स्ट। यू हैव टू राइट द नंबर फर्स्ट कि सबसे पहला किरल सेंटर है उसमें कौन सा कन्फ्यूगरेशन है। ऐसा नहीं करना है गाइस, दिस इज अ रॉन्ग वे टू रिप्रेजेंट। आप किसे आर बोलो किसे एस बोलो, तो बिफोर यू अप्लाई absolute configurations, one thing is very clear, you need to assign the number as per IUPAC। तो यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन है, यहाँ पे ये सेकेंड कार्बन है। अब आप सोचो सर मैं नीचे से नंबरिंग दूं तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड आएगा। ऐसा नहीं करना है गाइस। फंक्शनल ग्रुप कार्बन ऑलवेज हैव लीस्ट पॉसिबल नंबर एज पर IUPAC नेम, एज पर IUPAC नोमेनक्लेचर। ओके, फाइन। चलो, पहला ये कार्बन है, टेक इट एज ए इंडिविजुअल कार्बन। तो ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, और ये लंबा चौड़ा सब्स्टिट्यूएंट है। ओके, बट आपको केवल फोकस करना है गाइस ये कार्बन, यू नीड टू फोकस ओनली दिस कार्बन। चलो, which one will have a first priorities as far as first carbon is concerned? Just chat in message. Yes, of course, bromine, fine. Yes, bromine has been first. Okay, bromine first, chlorine second. Okay, or carbon third. Okay, and hydrogen will be 4. Fine. चलो, lowest priority backside है ही है, no problem at all. 1 2 3. So first carbon पे configurations अपना आएगा R. फर्स्ट कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशंस आएगा R. ओके, वेरी गुड। चलो, सेकेंड कार्बन पे मैं फोकस करता हूं। तो दिस कार्बन इज अटैच विथ H, अटैच विथ ब्रोमीन, अटैच विथ कार्बन, अटैच विथ कार्बन। यहां पे वो रूल आएगा,
जो मैंने बताया सीक्वेंस रूल नंबर 2, पॉइंट ऑफ डिफरेंस। चलो अब ये कार्बन की बात करूं, शिफ्टिंग टू द नेक्स्ट एटम, यहां से हमको नीचे ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये ऊपर वाला जो कार्बन है उसके साथ हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। नीचे वाले कार्बन पे क्या है गाइस? केवल 3 हाइड्रोजन है। तो इट इज एज सिंपल एज पॉइंट ऑफ डिफरेंस सीधा मुझे मिल गया, ब्रोमीन क्लोरीन। इसका मतलब ये हुआ कि प्रायोरिटी फर्स्ट तो ब्रोमीन की ही है, दिस वन विल हैव अ सेकेंड प्रायोरिटीज। ये पूरा ग्रुप, टेक इट एज अ ग्रुप, दिस वन इज हैविंग थर्ड प्रायोरिटी, दिस वन इज हैविंग फोर्थ प्रायोरिटी। चलो लोएस्ट प्रायोरिटी इस बैक साइड है, यस और नो? इज लोएस्ट प्रायोरिटी इज बैक साइड, यस और नो? Is lowest priority backside? No. Okay, fine. 1, 2, and 3. It is counterclockwise. So S, but lowest priority backside नहीं है, तो it is R. मैंने जानबूझ के ये एग्जांपल्स लिया। कई बार जब बच्चे दो किराल सेंटर्स वाले एग्जांपल्स हैंडल करते हैं, तो बुक में भी ऐसा दिया है कि एक कार्बन पे आर कॉन्फ़िगरेशन हो तो दूसरा ऑटोमेटिक एस है। अरे भाई ऐसा नहीं करना है। यू ऑलवेज हैव टू असाइन प्रायोरिटीज एट ईच एंड एवरी कार्बन सेपरेटली। 2 आर है, 2 आर, 1 आर है तो दूसरा एस ही होगा, ऐसा नहीं है गाइस। डोंट डू इन दैट वे। ओके, चलो एक और एग्जांपल्स में लेने जा रहा हूं। ओके, 2,3-dibromobutane, a simplest example guys, simplest example। चलो 2, 3, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। चलो ये पहला कार्बन, फर्स्ट, अरे प्रायोरिटी असाइन की बात करता हूं, तो ये हाइड्रोजन, ये ब्रोमीन, ये कार्बन और ये पूरा ग्रुप। ओके फाइन, 4 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स जो मैंने बताए। एक कार्बन पे मैं असाइन करके देता हूं, एक कार्बन पे आप लोगों को असाइन करना है। दिस वन इज फर्स्ट प्रायोरिटी, ये कार्बन के साथ कार्बन, ये कार्बन के साथ कार्बन। पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहां आया, कार्बन है, ब्रोमीन है, ऊपर तो तीनों हाइड्रोजन ही है, तो ये पूरा ग्रुप आएगा सेकेंड, ये कार्बन आएगा थर्ड, ये हाइड्रोजन आएगा 4। ओके, ओके फाइन, चलो नो प्रॉब्लम एट ऑल। लोएस्ट प्रायोरिटीज बैक साइड है कि नहीं है? इज लोएस्ट प्रायोरिटीज बैक साइड नहीं है, नो प्रॉब्लम। 1, 2 एंड 3 configuration is R, but original configurations will be S. Yes, this is a 2S. Yes, absolutely right. अब तीसरे कार्बन पे अप्लाई करना है कॉन्फ़िगरेशन, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट ब्रोमीन, दूसरा ये पूरा ग्रुप, तीसरा ये 1, 2, 3, 1, 2, 3, दिस इज एस, लोएस्ट प्रायोरिटी बैक साइड नहीं है। ओके, सो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशंस विल बी आर, 2S3R is the correct answer. Okay, so these are the examples where actually you can focus. Okay, अब मैं जो पार्ट बताने जा रहा हूं वो एक ऐसा है कि you will definitely find in many structures। जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करते हो बुक में, या तो एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन की बुक में, मटेरियल में, ऑनलाइन आप कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि फिशर्स प्रोजेक्शन में स्ट्रक्चर नहीं दिया है, बट स्ट्रक्चर इज गिवन इन दिस वे गाइस। स्टीरियो बॉन्ड्स दिया है, एक ही किराल सेंटर है और वहां पे स्टीरियो बॉन्ड्स ऐसे दिए हैं। तो क्या करना है भाई? अगर फिशर्स प्रोजेक्शंस दिया है तो इज इट फाइन? इट इज फाइन। बट अगर फिशर्स प्रोजेक्शंस नहीं दिया है, ये ऐसे एग्जांपल्स है जो नॉर्मल रेफरेंस बुक में इस टाइप के एग्जांपल्स नहीं दिया है।
आप केवल फाइंड करोगे फिशर्स प्रोजेक्शंस की एग्जांपल्स, तो उसमें तो मैंने बता दिया, इट इज वेरी सिंपल, एज इजी एज दैट। बट इस टाइप के एग्जांपल्स में क्या करना है, चलो गाइस, कुछ नहीं करना है, 3 रूल अपने जो है उसको याद करो। सबसे पहला रूल, असाइन दी प्रायोरिटी एज पर सीआईपी रूल्स। स्ट्रक्चर को फिशर्स प्रोजेक्शंस में नहीं बिठाना है, कोई बात नहीं, एक ही किरल सेंटर है, ऐसे ही स्टीरियो बॉन्ड है, उसमें ही स्ट्रक्चर को असाइन करना है। चलो, ये कार्बन के साथ कार्बन है, ये कार्बन के साथ कार्बन है, ये कार्बन के साथ कार्बन है, ओके, और हाइड्रोजन है, 4 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है। मुझे ये बताओ गाइस कि यहां पे अगर मुझे प्रायोरिटी असाइन करनी है ये कार्बन की, तो उसमें एक तो हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, दूसरा बी कार्बन है, तीसरा बी कार्बन है। डिफरेंस कहां आया, यहां जो CH3 है उसमें तीनों हाइड्रोजन है। अपना सीक्वेंस रूल नंबर 2, यहां पे जो 2 कार्बन है, यहां पे C डबल बॉन्ड C एंड C, यानी कि ये कार्बन के साथ 3 कार्बन है, और यहां पे जो मैं बताऊं तो C डबल बॉन्ड O एंड O, इसका मतलब ये हुआ कि इस कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन है। अब आप ही बताओ विच वन विल टेक प्रायोरिटी, सबसे पहली प्रायोरिटी मैं किसे दूं? यस, एब्सोल्युटली राइट, दिस वन इज हैविंग फर्स्ट प्रायोरिटी, वेरी गुड। दिस एंटायर ग्रुप इज हैविंग सेकेंड प्रायोरिटी, दिस इज अ थर्ड प्रायोरिटी, एंड दिस इज अ फोर्थ प्रायोरिटी। कोई बात नहीं, स्ट्रक्चर को ऐसा ही रखने दो। अभी मुझे ये बताओ कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी में जो स्टीरियो बॉन्ड है वो कुछ इस टाइप के बॉन्ड है, डार्क बॉन्ड है, यानी कि वो अबव द प्लेन है। क्या है? अबव द प्लेन। इसका मतलब ये हुआ कि लोएस्ट प्रायोरिटी बाय बैक साइड नहीं है, लोएस्ट प्रायोरिटी इज नॉट द बैक साइड, योर आंसर इज नो। ओके, चलो, अपना आंसर आ गया, कोई बात नहीं। अब क्या करना है गाइस, सिंपली रोटेट योर आइज फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट प्रायोरिटी, हाईएस्ट टू लोएस्ट प्रायोरिटी। इज इट रोटेट क्लॉकवाइज? यस आर, बट लोएस्ट प्रायोरिटी बैक साइड नहीं है, सो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशंस विल बी एस, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशंस विल बी एस। ये स्ट्रक्चर, इसमें ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकेंड प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटीज। अब आप देखो ये स्ट्रक्चर में लोएस्ट प्रायोरिटी पे ही मैंने डैश बॉन्ड बनाया है, लोएस्ट प्रायोरिटी में ही मैंने डैश बॉन्ड बनाया है। इसका मतलब ये हुआ कि अपना आंसर आएगा यस। क्या आएगा आंसर? यस। सो 1 2 and 3, simply rotate your eyes clockwise, it is R configuration. You can see, based on this type of geometry, कुछ नहीं करना है, अपने रूल्स को फॉलो करो। सीआईपी के हिसाब से आप भले ही स्टीरियो बॉन्ड्स मेंशन किए हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अपना रूल ये कहता है कि लोएस्ट प्रायोरिटी पीछे होनी चाहिए गुरु, बट लोएस्ट प्रायोरिटी पीछे नहीं है तो इन्वर्ट करना है, हाईएस्ट प्रायोरिटी पीछे हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। लोएस्ट प्रायोरिटीज अगर पीछे नहीं है, पीछे नहीं है, then you have to invert the configurations. पीछे है, no need to invert the configurations. This is as simple as guys. So this is what about today's very special session about assigning R and S configurations. Just tell me guys, ये जो मैंने आपको बताया rules DNL, one rule is very clear, वन रूल इज वेरी क्लियर, हाईएस्ट नंबर्ड स्टीरियो सेंटर पे आपको फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन देखनी है। जो याद रखना है, नंबर 2, असाइनिंग आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशंस, 3 सिंपल रूल। असाइन द प्रायोरिटी एज पर सीआईपी रूल्स, चेक लोएस्ट प्रायोरिटी बैक साइड है या नहीं है, और नंबर 3, रोटेट योर आइज फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट प्रायोरिटीज। बस। और 2 टाइप्स के स्ट्रक्चर, एक जो मैंने आपको एग्जांपल्स के तौर पे बताया वो फिशर्स प्रोजेक्शन, तो उसमें तो बहुत क्लियर है, मेनी एग्जांपल्स वी हैव सॉल्व्ड।
और दूसरे ये जो लास्ट में मैंने बताया वो, दिस काइंड ऑफ थिंग्स डेफिनेटली आस्क इन एग्जामिनेशंस। चलो, एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर में बनाता हूं, जस्ट डू असाइन दी प्रायोरिटीज। Okay, assign the configuration, RNS, last structures from today's session. First priority is OH. Okay, now this one, this is a CH2, this is a CH2. तो दो हाइड्रोजन, एक कार्बन, यहां पे तीनों हाइड्रोजन, यहां पे तीनों हाइड्रोजन, यानी कि विच विल टेक प्रायोरिटी ओवर विच वन, तो ये पूरा जो ग्रुप है वो आएगा सेकेंड, दिस वन एंटायर ग्रुप इज थर्ड, दिस वन इज फोर्थ। ओके, चलो लोएस्ट प्रायोरिटीज ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है, डैश बॉन्ड तो बैक साइड ही है, नो नीड टू इन्वर्ट। Okay, simply 1, 2, 3, rotate your eyes clockwise. The configuration is R. Yes, absolutely right, guys. Absolutely right. Okay, fine. So this is all about today's sessions. Okay, do revise. If you have any doubt, you can definitely call me, message me. If you have any trouble in the assigning configuration in any structure, but I must be sure when you are practicing, do follow the rules. Do follow the rules, guys. अगर rules follow नहीं करते हो, rules follow नहीं करते हो, तो definitely you will be in a deep trouble. तो आप ट्रबल में आ सकते हो। ओके, प्रायोरिटीज अगर गलत असाइन करते हो, इफ यू आर असाइनिंग प्रायोरिटीज रॉन्गली, देन डेफिनेटली व्हाट यू कैन से कॉन्फ़िगरेशंस गलत आएगा, कॉन्फ़िगरेशंस आपका गलत आएगा। ओके, फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस सेशन। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू।